Hi guys, welcome to the channel Success Corner and hope your studies are going all right. And today we'll be discussing upon जो आपका बहुत ज़्यादा डिमांड था जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने का which are the medical fitness standards required for Armed Forces Medical College Pune and to know if you are medically fit to join the armed forces or not. ठीक है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे एंड इफ यू हैव नॉट स्टिल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, go and do it because many such videos will be uploaded in the following days. Are these fitness standards required for Armed Forces Medical College and not for any other college? Because आपको पता है कि after joining AFMC there is a bond you have to serve in the army for a minimum of 7 years. So if you have to join the armed forces, the candidate or the cadet who will be admitted to this college, he should be in good physical and mental health. उसको कोई किसी तरह की बीमारी या डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए so that he can efficiently give his service इन द आर्म फोर्सेस, अच्छे से अपनी ड्यूटी कर पाए, उसके कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, इसीलिए ये मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में. फिटनेस टेस्ट कंडक्ट कहाँ होता है, कौन करता है? तो एक मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड है एएफएमसी में जो बैठता है व्हेन यू गाइस कम फॉर द इंटरव्यू. जो इंटरव्यू होता है उसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है एएफएमसी में, जो एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स यहाँ पे है, वो आपका फिटनेस टेस्ट लेंगे. उस हिसाब से आपको बिफोर द final list for AFMC is declared, you will be categorized into if you are fit or unfit. Those who are fit will only be shortlisted for the final list. Okay. You are declared unfit. अगर आप unfit declare होते हैं किसी कारण की वजह से, if you think you are not satisfied with their decision, you can appeal again with a payment of rupees 40 only. There only you can appeal it. Okay. Wasting any time, we'll straight away start with what medical standards are there for you to be fit and to join Armed Forces Medical College in 2020. This is the latest revised guidelines for medical standards. Important, we'll be talking about height and weight. So there are standards for females differently and males differently. First we'll be talking about females. Females में है कि minimum height there should be of 144 centimeters and 36 kgs weight is minimum. It is essential. और जैसे आप टेबल देख सकते हैं, your height and weight should be this table also has the age in years, and your height and weight should be according to this table. If you are more than this or you are less than this, you will be deemed as overweight or underweight, and subsequently you will be unfit to join Armed Forces Medical College. This height weight category is very important. This is the first thing they see when you come for medical exam here in AFMC. Candidates, 157.5 centimeters the minimum standard for boys, but if you are a Gorkha or Nepalis, Assamese or Garhwali, then your height standards will be reduced. The minimum height needed is 152.5 centimeters. And weight, irrespective of what you are, should not be below 47 kgs. Okay, irrespective of age or any other factors. And this table, see this table, and there are age groups as well and the height as well. Compare the height with weight. जो height के साथ जो weight होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा कम होने पे you will be deemed, as I have already told, overweight या underweight, जिससे आपको unfit कर दिया जाएगा. आई एग्जामिनेशन, आई विजुअल स्टैंडर्ड्स हैं कि आपका, जैसे ये बहुत लोगों को डाउट होता है कि विजुअल स्टैंडर्ड्स चश्मा पहन के, चश्मा वालों को अलाउड होता है कि नहीं जो स्पेक्स पहनते हैं, स्पेक्स वालों को भी अलाउड होता है. आप जैसे ऊपर टेबल देख सकते हैं कि मायोपिया ऑफ नॉट मोर देन -3.D. ओके, मतलब -3.5 से ज्यादा चश्मा नहीं होना चाहिए और +3.5 से ज्यादा चश्मा नहीं होना चाहिए. इसके अंदर कोई भी वैल्यू है, -3, -2, +2, कोई भी है, तो आप अनफिट
नहीं है। इसके अलावा आपको आंख की और कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, प्रोग्रेसिव मायोपिया नहीं होना चाहिए, दोनों आंखों से दिखाई देना चाहिए, और आपका रेटिना वगैरह में कोई इन्फेक्शन या कोई और डिसीज नहीं होनी चाहिए। तो स्क्विंट भी नहीं होना चाहिए। स्क्विंट मतलब आंखें एक तरफ देख रही है, दिखाई कहीं और दे रहा है, देख कहीं और रहे हैं, वो स्क्विंट भी नहीं होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत लोगों का डाउट भी होता है कि एक लेसिक सर्जरी होती है, लेजर आई सर्जरी, वो उन्हीं लोगों के लिए परमिटेड है जो 20 इयर्स क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन के आने से 6 मंथ्स सर्जरी को हो जाने चाहिए, तभी यहाँ पे वो फिट किया जाएगा। अगर वो 20 से कम है और सर्जरी या 6 मंथ से कम हुई है, सर्जरी को 6 मंथ से कम हुए हैं, सो दैट कैंडिडेट विल बी डीम्ड अनफिट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। ईयर, नोज एंड थ्रोट ईएनटी एग्जामिनेशन हैं वो दो तरीके से टेस्ट किए जाते हैं, एक स्पीच टेस्ट से और एक ऑडियोमेट्री टेस्ट से। स्पीच टेस्ट में क्या करते हैं कि एक फोर्स्ड विस्पर करेगा कोई एंड यू शुड बी एबल टू हियर इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 फीट। अगर आपको नहीं सुनाई देता है सो यू विल बी अनफिट, सुनाई देता है सो यू विल गो टू द नेक्स्ट टेस्ट जो है ऑडियोमेट्री रिकॉर्ड। वो एक मशीन होता है जिससे आपकी हियरिंग टेस्ट की जाती है कि हर फ्रीक्वेंसी पे आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। स्पीच में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो आपकी स्पीच है उसमें कोई गलती दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बोलने के तरीके में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ईयर शुड नॉट हैव डिस्चार्ज और वैक्स, वैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए। ईयर ड्रम में कोई परफोरेशन नहीं होनी चाहिए। नोज, नेजल सेप्टम जो नोज है आपका सीधा होना चाहिए, डिविएटेड वगैरह नहीं होना चाहिए। एक स्पेशल टिप फ्रॉम माय साइड इज दैट बिफोर कमिंग हियर फॉर ईएनटी, बहुत स्ट्रिक्ट होता है यहाँ पे, बिफोर कमिंग हियर फॉर ईएनटी एग्जाम आई advise you to have an ENT exam yourself and have both ears cleaned, and wax should be removed before medical examination here. Please note this, okay? Dental standards, dental examination है 14 डेंटल पॉइंट्स इन्होंने बांट रखे हैं अकॉर्डिंग टू हाउ योर टीथ आर एंड योर टीथ, उस हिसाब से आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे। एंड योर टीथ शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कैरीज, कोई इन्फेक्शन या गड्ढे वड्ढे नहीं होने चाहिए और कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ये हैं डेंटल स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी स्टैंडर्ड्स, जो आपका चेस्ट एक्सरे से कोई टीबी वगैरह की बीमारी पहले ऐसा नहीं है कि होनी चाहिए, कोई बीमारी चेस्ट की, टीबी मोस्ट इंपॉर्टेंटली टीबी नहीं होना चाहिए, या ऐसा भी नहीं पहले भी अगर टीबी हुआ हो तो आप अनफिट हैं, यू विल बी अनफिट, सो चेस्ट एक्सरे विल बी टेकन फॉर दिस पर्पस। और एक 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए, आपको फुल एक्सपिरेशन करने को बोलेंगे, फिर आपका चेस्ट का डायमीटर लिया जाएगा। आफ्टर दैट यू विल बी आस्क्ड टू मैक्सिमम इंस्पिरेशन, टू डू मैक्सिमम इंस्पिरेशन। 5 सेंटीमीटर्स आपका चेस्ट एक्सपेंशन मिनिमम होना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टैंड साइन ऑफ एनी डिसीज ऑफ हार्ट और ब्लड वेसल्स, आपको हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए, बीपी नहीं होना चाहिए, आपके हार्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके हार्ट में होल है या आपका हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम ईसीजी भी लिए जाते हैं यहाँ पे और बाकी टेस्ट भी किए जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स, सीजर वगैरह की या मेंटल या साइकेट्रिक इलनेस की कोई हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, ना आपको सीजर की कोई हिस्ट्री होनी चाहिए, अगर है तो आप अनफिट हैं। द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जिसके हैं ये ऑर्थोपेडिक स्टैंडर्ड्स हैं। लोगों ने पूछा है कि फ्रैक्चर्स वैक्चर्स का क्या है, फ्रैक्चर्स से अनफिट होते हैं कि नहीं। फ्रैक्चर्स का एज इन कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका कंप्लीटली हील्ड है यहाँ आने से पहले, ओके। फ्रैक्चर्स ठीक है, बचपन में बहुतों को होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेजर कोई फ्रैक्चर है जैसे आपका मेजर जॉइंट ही गया है, जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है, ऐसा सब नहीं अलाउड होता है। पर वैसे फ्रैक्चर्स बहुत लोगों के हाथ के फ्रैक्चर्स होते हैं, दीज हैव नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर,
ठीक है, बाकी क्या है, सीरियस डिफॉर्मिटी कोई और नहीं होनी चाहिए, कोई और सीरियस ही डिफॉर्मिटी, आपका पैर बाहर जा रहा है, नॉक नीज वगैरह, ये सब अलाउड नहीं है। स्कोलियोसिस मतलब आपकी पीठ टेढ़ी है, और कोई स्केलेटल डिफॉर्मिटी, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर है तो अनफिट, यू विल बी डिक्लेयर्ड अनफिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्डोमिन स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसमें बहुत सारे लोग अनफिट हो जाते। एब्डोमेन का यूएसजी अल्ट्रासाउंड होगा, जिसमें आपका लिवर, स्प्लीन और किडनी देखे जाएंगे, और इसमें आपका लिवर नॉर्मल साइज का होना चाहिए, स्प्लीन नॉर्मल साइज का होना चाहिए, किडनी भी नॉर्मल साइज का होना चाहिए। इसके अलावा देयर शुड बी नो इनग्वाइनल हर्निया, हर्नियाज होते हैं तो ये नहीं होना चाहिए, हर्निया नहीं होना चाहिए, हाइड्रोसील नहीं होना चाहिए, वेरिकोसील नहीं होना चाहिए, और जेनिटल ऑर्गन्स में भी कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हर्निया हुआ है तो ऑपरेशन है तो वो फिट हो सकते हैं। इसके 3 प्री रिक्विजिट है, 1 साल से ज्यादा हो जाना चाहिए ऑपरेशन को। बाकी एब्डोमिनल टोन शुड बी गुड एंड रिकरेंस ऑफ हर्निया शुड नॉट बी देयर। अगर ये तीनों है, इवन इफ यू हैव हैड अ हर्निया, you will be allowed to join AFMC। और किडनीज भी ठीक होने चाहिए, नॉर्मल डायमीटर, शेप वगैरह नॉर्मल होना चाहिए, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, बड़ा किडनी नहीं होना चाहिए, कोई स्टोन्स नहीं होने चाहिए। ओके, एंड ग्लाइकोसूरिया, जो शुगर इन डायबिटीज वगैरह ये सब जो है, प्रोटीनूरिया है, ये सब नहीं होना चाहिए। कोई पाइल्स या हेमोराइड्स भी नहीं होने चाहिए। Standards which I'll be including here is skin diseases should not be there. There should not be any skin diseases, no sexually transmitted diseases or HIV, and enlarged lymph nodes should not be there in neck or any other part of the body. Okay, because they suggest an infection or inflammation going inside, and that should not be there. Okay, with this I end my video. Hope you are clear with the standards for fitness necessary for joining Armed Forces Medical College, and if there are any doubts, comment below. I'll clear the doubts, and I want at least 100 likes on this video because it is of much value. And like, share and subscribe this channel. All the best. Do well for your NEET.